Namaskar friends, welcome to today's session of NEET Admission Faridabad. So in today's video we'll discuss about that what will be the impact of this normalization on expected cutoff and coming result. So before starting today's video, I would suggest you please subscribe the channel so that you receive all the notification updates and counseling related videos on time. Now coming back to our today's topic. Normalization method is going to get implemented this year in 2024 exams of NEET PG 2024 exams. So what will the impact? According to me, impact will be 5 to 7% or 8% maximum. Those students who have given examination in shift 2, they will get better rank in comparison to those students who have given examination in shift 1. See, these are all expectations. These are all perceptions. Nobody exactly knows what will happen. No counselor knows it and nobody knows it. As in my earlier videos, I have already said you that if anyone is having data of 20,000 students or survey of 20,000 students, then they may give some, a conclusion that yes, this may happen. But nobody is having that much survey or data. So there will be an impact of this normalization, but not that much. As many students are giving reviews that shift 2 paper was bit tough than shift 1 paper. So those students who appeared in shift 2, they may get little privilege over shift 1 students. That's it, not more than that. Suppose last year, if on 500 marks rank was 18,000, so those students who have given examination in shift 2, they may get a rank of 17,000 or 16,000, not more than that. The difference is not going to happen for 25% or 30%, not like that. Maximum 5 to 10%. So those students who are scoring 500 marks in shift 2, they may get a rank of 16,000. Those who have given examination in shift 1, they may get a rank of 18,000 or 18,500 or 19,000 maximum. So this will be the difference in shift 1 and shift 2 in terms of marks and rank. So and if we compare it with last year, so maximum 5 to 10% positive or negative shift will be seen in this year result or rank. You may see that. So this is the impact of normalization. Apart from that, I don't think that on 500 marks any student will get 10,000 rank or 8,000 rank, not like that. मेरे हिसाब से नॉर्मलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट इतना ही रहेगा, मैक्सिमम 5 से 10% लास्ट ईयर से अगर हम कंपैरिजन करें तो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही यही है कि दोनों जो एग्जामिनेशन हुए हैं उसको नॉर्मलाइज किया जाए. मतलब जिसका एग्जाम इजी था उसका जो है मार्क्स वैसा ही रहेगा, बट जिसका पेपर हार्ड था उस पेपर के मार्क्स को थोड़ा बेटर बना दिया जाएगा. तो कहने का मतलब ये है कि 5 से 7% का ही इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने भी रिव्यूज आ रहे हैं, जो भी बातचीत हुई है, बहुत सारे प्रोफेसर से बातचीत हुई है, बहुत सारे स्टूडेंट से बातचीत हुई है, तो ज़्यादा का गैप नहीं था, थोड़ा सा पेपर टफ था. तो वो जो टफनेस है उसको ये 5-7% का जो इम्पैक्ट है वो इसको बैलेंस कर देगा. तो ऑन 500 मार्क्स यू मे एक्सपेक्ट अ रैंक, इफ यू अपियर्ड इन शिफ्ट 2 एग्जामिनेशन, you may expect a rank around 16,000, and those who appeared in shift 1, they may expect a rank around 18 to 19,000. तो यही इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं आएगा. और ये रेशियो इसी रेशियो में अगर लास्ट ईयर किसी पर्टिकुलर मार्क्स पे रैंक था 50,000, तो इस साल जो शिफ्ट 2 में उतना ही मार्क्स लेके आ रहे हैं उनका रैंक हो सकता है 45 हो जाए या 42 हो जाए, और जो शिफ्ट 1 में आ रहे हैं उनका रैंक हो सकता है 55 हो जाए. इतना ही फर्क रह सकता है, इससे ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा. यानी लास्ट ईयर से हम कंपेयर करें तो शिफ्ट 2 वाले 5 से 10% रैंक को इम्प्रूव मान के चलें, और जो शिफ्ट 1 वाले हैं वो 5% या 7% से
अपने रैंक को ऊपर जो डिक्रीज मान के चल सकते हैं। और ये प्योरली परसेप्शन है मेरा या जितने भी काउंसलर्स हैं सबका, इसमें फैक्ट कुछ भी नहीं है, ये सबका अपना अपना एक परसेप्शन है। एग्जैक्ट सिचुएशन रैंक आने के बाद ही पता चलेगा, कोई नहीं कह सकता यही रैंक होगा और यही सिनेरियो रहेगा, ये किसी के बस की बात नहीं है ये सारा कैलकुलेशन करके और ये एग्जैक्टली बता देना। सो जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट्स। आई थिंक 24, 25, 26 ये 3-4 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाना चाहिए। सो वेट फॉर सम मोर डेज एंड यू विल गेट द एग्जैक्ट आइडिया दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। एक और क्वेश्चन बहुत आ रहा है कि सर मार्क्स के हिसाब से रैंक की बात तो अलग है, क्या कट ऑफ पे भी इंपैक्ट पड़ेगा? यानी लास्ट ईयर रेडियोलॉजी 3000 रैंक पे क्लोज हुआ था, तो इस बार क्या वो 4000 रैंक पे क्लोज होगा या 5000 रैंक पे क्लोज होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो ऊपर जा सकता है, नीचे नहीं आएगा। अपर क्लिनिकल जो ब्रांचेस हैं जैसे रेडियो, मेडिसिन, डर्मा, इन सब ब्रांचेस में कट ऑफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ये डिपेंड करता है उस साल की सीट मैट्रिक्स के ऊपर, उस साल के एग्जामिनेशन पे इतना डिपेंड नहीं करता है। अगर सीट्स ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा कट ऑफ डाउन जा सकता है। सीट्स अगर उतनी रहती हैं तो कट ऑफ डेफिनेटली ऊपर जाएगा। तो सीट्स इस बार इंक्रीज हो रही हैं, अब कितनी इंक्रीज होंगी ये पता चलेगा जब सीट मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि हर साल एनएमसी के वेबसाइट पे दिखाता कुछ और है और जब हम डाउनलोड करते हैं सीट मैट्रिक्स तो उसमें कंपैरेटिवली सीट्स कम आती हैं। सो इस पे भी एग्जैक्ट आइडिया बनाना मुश्किल है फिलहाल। तो बट नॉर्मलाइजेशन का इंपैक्ट उस कट ऑफ पे नहीं पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन का इंपैक्ट पड़ेगा मार्क्स के हिसाब से रैंक पे। जो पिछले साल आया था उसके कंपैरिजन में चीजें चेंज हो जाएंगी इस साल। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और भी इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। नमस्कार।